Friends, good morning. Today I am going to start a skeletal muscles. A skeletal muscle, also called voluntary muscles or stated muscles. Stated muscles, क्यों कहते हैं इसको stated muscles? Due to presence of transverse bands or stripes. ओके, और कह सकते हैं और डार्क एंड लाइट बैंड्स in alternative form due to presence of dark and light band, it is called stated muscles. Okay, ठीक है. Next, it is also called skeletal muscles, means attached with a skeleton, means bone. And voluntary muscles means contraction is under our will, under will power of animals. It means contraction animals के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है. So these are the different names of skeletal muscles or stated muscles. Okay. जनरली मैं फिगर बताया था, दिस टाइप प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइप्स, outermost covering is sarcolemma filled with sarcoplasm. Okay, and this it is multinucleated, more than one nucleus are present. Nucleus is also situated in peripheral regions. ठीक है ना. चलिए आगे. Generally muscles fibers, each muscles fiber is covered by, surrounded by a connective tissue. Suppose that this is muscles fiber, single muscles fiber, ठीक है, covered by sarcolemma. Outermost covering of muscles fiber is sarcolemma, and around the sarcolemma, this like a connective tissue is present, and this is called endomysium. Each fiber, muscles fiber, is covered by, surrounded by a connective tissue that is called endomysium. Okay, next, endomysium. अब देखिए, it is present in a group. Endomysium present in a group, this type. And group of muscles fiber is called fasciculi. Group of muscle fiber is called fasciculi. Suppose that this is group of, and this group is called fasciculi. Fascicula or fasciculi. Fascicula singular, fasciculi plural. And fascicula is covered by, covering of fascicula is called perimysium. Covering of fascicula is called perimysium. अब देखिए, ऐसा ऐसा बहुत सारा fascicula हो गया. मान ले इसको बना दे fascicula,
these are fascicula. Covering of fascicula is called perimysium, and more than one fascicula is also covered by a membrane. एक से अधिक fascicula भी एक बंडल में अरेंज हो गया, and this covering is called epimysium, and this whole structure acts as a muscles. इसी पूरे स्ट्रक्चर जो है, यह पूरा स्ट्रक्चर मसल्स के रूप में काम करता है. ओके, तो सबसे पहले देखिए हमने क्या देखा. मसल्स फाइबर इज कवर्ड बाय एंडोमाइसियम. ग्रुप ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड fascicula. Fascicula is surrounded by perimysium. Each fascicula is surrounded by perimysium, and group of fascicula is surrounded by epimysium. Okay, now we see the internal structure of stated muscles. इंटरनल स्ट्रक्चर, ये तो मैं एक स्ट्रक्चर देखा हूं. आखिर ये बैंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम लोग देखें. इन स्टेटेड मसल्स स्ट्राइप्स और बैंड्स आर प्रेजेंट. ओके, एंड दीज बैंड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन. वन इज एक्टिन प्रोटीन, अदर इज मायोसिन प्रोटीन. एंड एक्टिन एंड मायोसिन आर filamentous protein. Or filamentous protein means filament like. It means bands are formed by actin and myosin filamentous proteins. Bands are, इधर लिखता हूं मैं, bands are formed by actin and myosin filamentous protein. Okay, actin filament is thin filament, and myosin filament is thick filament. And due to interarrangement of actin and myosin filament, bands are formed. अब इसका स्ट्रक्चर देखिए. जनरली सपोज दैट this is thin filament. These are thin filament. And around the thin filament, thick filament is present, this like. ओके, थिक फिलामेंट, फिर थिक के बाद इधर दूसरी तरफ फिर थिन होगा. ठीक है ना. फिर इधर थिक, it means in this structure thick and thin filaments are arranged in a definite pattern. पैटर्न यही है. अब देखिए, this is called actin thin filament. Okay, and this is myosin thick filament. Clear? One is actin, other is myosin filament. एक टोटल थिन फिलामेंट का पार्ट है. इन मिडिल ऑफ थिन
actin filament, a line is present, a very thin line is present that connects the all thin filaments. All thin filament को जोड़ने वाला ये line, this line, and this line is called Z line. This line is called Z line. So this and this also Z line. And the distance between two Z line is called sarcomere. Distance between two Z line is called sarcomere, and sarcomere is the functional unit of striated muscles. Functional unit of striated muscles. The function of a striated muscle is contraction and expansion. Generally contraction, and contraction occurs due to this part means sarcomere. इसी में कुछ न कुछ चेंजिंग होता है जिसके कारण मसल्स का कंट्रैक्शन होता है. So sarcomere is the functional unit of striated muscles. Okay, now see. यह जो लाइन है, इस पार्ट की बात करें, यहां से लेकर के यहां तक, in this area only actin और thin filaments are present. यहां से लेकर के यहां तक में क्या है, सिर्फ thin filaments है. जबकि इस एरिया की बात करें या इस एरिया की बात करें तो यहां thin भी है, thick भी है. ओके, अब देखिए इस एरिया की हम बात करते हैं, यहां से यहां तक, सॉरी यहां से this part, a part where only thin filament or actin filament is present, that is called I band. This is called I band. I band means isotropic band. Only only one types of filament is present, and that filament कौन है, वो actin filament. Okay, but in this region actin and myosin both filaments are present. Actin and myosin both types of filaments are present. So this is called A band. I band, A band. A band means an isotropic band. An isotropic and iso means same and iso not same. It means in this area all fibers are not similar. There are two types of fibers, actin fiber and myosin fibers are present. So this area is called an isotropic band. Okay, one is A band, other is I band. ठीक है, अब देखिए यह है मायोसिन का एरिया. इन मिडिल ऑफ द मायोसिन where actin protein is not present. इस एरिया में एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है. इस एरिया में सिर्फ क्या है, मायोसिन प्रोटीन ही प्रेजेंट है. ठीक है, ओनली मायोसिन प्रोटीन इज प्रेजेंट एंड that is called M zone. इसका नाम हम क्या देंगे, M zone. ठीक है ना, 1 मिनट. M zone और H zone. ठीक है, अब देखिए H जोन क्या है. H zone is the part of myosin protein where not actin filament is not present.
means central part of myosin, central part of myosin zone where actin filament is not overlapped is called H zone. Okay, and in middle of the myosin filament, जैसा कि यहां हमने देखा कि एक्टिन फिलामेंट के बीच में जेड लाइन है, ठीक उसी तरह से मायोसिन फिलामेंट के बीच में भी एक लाइन है जो सभी मायोसिन फिलामेंट को जोड़ने का काम कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एम लाइन. दिस इज कॉल्ड एम लाइन. का नाम लिखें एम लाइन. एम लाइन मीन्स line situated in middle of myosin that connects all myosin filaments. ठीक है, ऑल मायोसिन फिलामेंट्स. तो यह है इंटरनल स्ट्रक्चर. अब ध्यान दीजिए, एक मायोसिन है, उसके बगल में एक्टिन है, फिर उसके बगल में मायोसिन है. ये तो हमने देखा इस तरह का सेक्शन. मान लिया मसल्स है, इसको हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट लिया तो हमको ऐसा दिखाई दिया. अब अगर इसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटें इस रूप में, इस एरिया को देखें तो क्या अरेंजमेंट होता है. ध्यान दीजिए, जनरली इन transverse form one myosin filament is surrounded by 6 actin filaments. एक मायोसिन के चारों तरफ 6 एक्टिन होता है. okay? And each actin is surrounded by 3 myosin. स्ट्रक्चर अगर देखें तो इस रूप में देखिए, okay. Now see, this is thick filament. It means it is myosin filament. Myosin. And this is actin. One myosin and this actin. देखिए तो एक मायोसिन के चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 एक्टिन,
और एक एक्टिन के चारों तरफ 1 2 3 मायोसिन। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इधर भी तो होगा, इसकी बात करेंगे इधर भी होगा। इट मीन्स ईच मायोसिन इज सराउंडेड by 6 actin filament, 6 actin filament, and each actin is surrounded by 3 मायोसिन फिलामेंट। क्लियर? ओके। अब देखिए एक के चारों तरफ 6 और इसके चारों तरफ 3। अब ध्यान दीजिए जरा सा, फिर से आइए वापस। सार्कोमियर, सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ अस्टेटेड मसल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 जेड लाइन। यह जेड लाइन है, यह जेड लाइन है, इस बीच के एरिया को सार्कोमियर कहते हैं। अब देखिए तो सार्कोमियर का फॉर्मेशन किससे हुआ? सार्कोमियर इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1 कंप्लीट ए बैंड, ए बैंड यहां भी है, ए बैंड यहां भी है, ठीक है, और इधर हाफ क्या है? आई बैंड है, ठीक है ना, इधर हाफ आई बैंड है, ठीक है ना। अब देखिए इस तरफ से कहते हैं सार्कोमियर इज कंसिस्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ए बैंड एंड 2 हाफ आई बैंड, इधर और इधर, और ये पूरा हो गया ए बैंड। यहाँ पोजीशन बीच का थोड़ा सा पार्ट एच जोन है, ऐसे माना जाए तो यहां से यहां तक ए बैंड, तो एक ए बैंड और 2 हाफ आई बैंड, इसके मिलने से सार्कोमियर का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए आते हैं, लिखते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर distance between 2 जेड लाइन्स, जेड लाइन्स और जेड लाइन्स, 2 जेड लाइन्स के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा क्या? सार्कोमियर। एंड सार्कोमियर मीन्स वन ए बैंड, 1 A band and 2 half I band, 1 A band and इधर से हाफ और इधर से हाफ, 2 half I band, and length of sarcomere is 2.5 माइक्रोमीटर। कितना मिलाकर कितना हो जाएगा? 2.5 माइक्रोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ सार्कोमियर इज 2.5 माइक्रोमीटर। अब इसमें एक आई बैंड का लेंथ होगा और दूसरा ए बैंड का लेंथ होगा, ठीक है ना। तो ए बैंड मीन्स मायोसिन बैंड, मायोसिन बैंड, ए बैंड इज, ए बैंड का लेंथ अगर हम बात करें तो 1.5 माइक्रोमीटर, और दूसरा बचा आई बैंड 1 माइक्रोमीटर। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 2.5। यानी अगर हम इस पूरे इधर की बात करें, यहां भी है इधर आई बैंड, तो इस पूरे अगर हम आई बैंड की बात करें तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोमीटर। आई बैंड 1 माइक्रोमीटर, ए बैंड 1.5 माइक्रोमीटर। ओके, so this is the length of sarcomeres। क्लियर? अब ध्यान दीजिए,
यहां आई बैंड और एम ए बैंड है, मीन्स मायोसिन प्रोटीन है और एक्टिन प्रोटीन। इस मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन के बीच में कुछ कनेक्शन भी होता है, दिस लाइक। ठीक है, मायोसिन और एक्टिन के बीच में कनेक्शन है, दिस लाइक। And this connection is called cross bridge. This is called cross bridge. Okay, and with the help of cross bridge, one filaments slides upon other. Suppose that these are two filaments. इस फॉर्म में है और इन दोनों के बीच में क्या है, तो एक कनेक्शन इस तरह से मान के चलिए, ऐसा स्ट्रक्चर है क्रॉस ब्रिज का। ये है क्रॉस ब्रिज है और ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि ये क्रॉस ब्रिज का जो, ये क्रॉस ब्रिज की हम बात कर रहे हैं, इसमें मूवमेंट होता है दिस लाइक, और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रोटीन दूसरा है फिलामेंट। अब अगर इसमें हम मूवमेंट करें इस ढंग से, देखिए मूवमेंट हो रहा है ना, इधर 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 इधर, रिजल्ट क्या होगा, यह कभी कंट्रैक्ट करेगा कभी एक्सपैंड करेगा, कभी कंट्रैक्ट करेगा कभी एक्सपैंड करेगा, ठीक है। अगर इसको हम नॉर्मल कंडीशन मान लें और इस क्रॉस ब्रिज के कारण वन फिलामेंट दूसरे पर स्लाइड करता है, तो सार्कोमियर का कौन कौन सा पार्ट चेंज करेगा, इसको ध्यान में रखना है। देखते हैं। ओके, नाउ सी, during contraction of muscles, suppose that this is the muscles in relaxed form, ये relaxed form में है, और अगर muscles का contraction होता है, muscle का contraction होता है, तब क्या होगा ध्यान दीजिए। जनरली ड्यूरिंग contraction myosin and actin filaments slide upon each other. Suppose that this is myosin, ग्रीन कलर का हमने मान लिया मायोसिन है ये, और इस मायोसिन के ऊपर में एक्टिन है, दिस लाइक। ये पोजीशन की बात मैं कर रहा हूं, देखिए इधर मायोसिन, ठीक है ना, मायोसिन के ऊपर में क्या है, एक्टिन है। जब भी कंट्रैक्शन होगा तो स्लाइड करेगा इस तरह से, मीन्स कौन स्लाइड कर रहा है, ध्यान दीजिए, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स अपॉन मायोसिन, इधर से विद द हेल्प ऑफ क्रॉस ब्रिज, ये मूव कर रहा है इस रूप में, समझिए ज्यादा क्लियर हो, देखो इस रूप में स्लाइड कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, जब ये स्लाइड करेगा मीन्स एक्टिन जब मायोसिन पर मूव करेगा तो यह डिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी अब जो देखिए मैं कंट्रैक्ट फॉर्म बनाया हूं, कंट्रैक्शन के फॉर्म में सार्कोमियर जो पहले यहां से यहां तक, अब सार्कोमियर छोटा हो गया, सार्कोमियर गेट रिड्यूस्ड हो गया लेंथ। अब क्या क्या चेंजिंग है ध्यान दीजिए, तो यहां से यहां तक की अगर हमने बात किया तो ये था ए बैंड, जहां की मायोसिन प्रोटीन की बात हमने कर रहा है, मायोसिन है और एक्टिन दोनों है। अब इस लेंथ में क्या चेंजिंग हुआ, देयर इज नो चेंजिंग, इट मीन्स ड्यूरिंग कंट्रैक्शन नो चेंज इन ए बैंड, नो चेंज इन ए बैंड, ए बैंड में कोई चेंज नहीं हुआ, यहां से यहां तक मायोसिन का था, यहां भी है यहां भी, ओके। बट दिस पार्ट की अगर हम बात करें, यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है, ये इस पे स्लाइड कर दिया, तो स्लाइड करेगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, और इसी डिस्टेंस का नाम हमने बताया है क्या, आई बैंड, आई जोन। सो आई बैंड गेट्स रिड्यूस्ड, आई बैंड इसका लेंथ क्या होगा, ये स्लाइड कर गया तो इस बीच का जो पार्ट होगा, ए पार्ट, इसका डिस्टेंस घट जाएगा। अब देखिए बीच का जो मैं जोन की बात कर रहा हूं, जहां की सिर्फ मायोसिन है, सिर्फ मायोसिन है, डेट इज कॉल्ड एच जोन, डेट इज कॉल्ड एच जोन। अब एच जोन
यहां तक था, धीरे धीरे इधर से भी एक्टिन जा रहा है, इधर से भी एक्टिन आ रहा है, रिजल्ट क्या होगा, बीच का जो एरिया है डिस्टेंस, ये पहले यहां था अब इतना हो गया, मतलब क्या हुआ, H जोन गेट्स रिड्यूस्ड। क्लियर? तो कंट्रैक्शन के समय क्या क्या चेंजिंग आया ये क्लियर हो गया। चलिए अब इस मसल्स का फंक्शन भी जानना है, कैसे वर्क करता है, कंट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, जिसको कि हम लोग लोकोमोशन में ही साथ में पढ़ेंगे, लोकोमोशन लेसन में। यहाँ इतना स्ट्रक्चर देख लिया स्टेटर मसल्स का, कुछ फंक्शन भी देख लिए, अब रह गया कि ये कैसे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा, कंट्रैक्ट और एक्सपेंड करेगा। ठीक है, चलिए ओके।